जी, वेलकम टू क्लास. दिस इज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स BEGAE 182. इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की क्लास है ये. आपका यूनिट 3 है और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस. चलिए मनीषा जी आप रीड कीजिए. ओके सर. जी सर 3.5 से ही ना. जी. Okay, sir. Barriers to communication. Everybody tries to communicate, but not all communication is successful. That is, there may be difference between what is instead as the message and what the understood. Communicator barriers receiver. The the re, the reasons for these barriers to communication are several and may be classified under three broad categories. First, semantic and linguistic barriers. Second, social psychological barriers. Third, cross culture barriers. We have already discussed some aspects of cross culture communication in this unit, and in the previous one we have seen that barriers in cross culture communication may arise from variation among culture, the meaning attached to gestures, symbols, or body language. We shall not speak about the first two categories of barriers to communication. Semantic and linguistic barriers. Language is not precious tool for thought is need of handled deftly, accurately, and carefully. We shall return to the point in later blocks. Ambiguity in expression. Every language has words that sound the same but have different meaning, or words that sound or look very similar but are very different in meaning. Ambiguity can arise because of such words of expression, whether intentionally or unintentionally. An intentional use of such a word is commonly known as a pun. Look at this example. They can fish here. This can meaning either first they are permitted to fish here, or second they put fish into cans here for marketing. The words can in first is a modal auxiliary. In second it is a main verb related in meaning to the noun. A can there is well known joke about the farmer who said about this abundant harvest of tomatoes. We we eat or sell what we can, and what we can't we can. By now, you can easily understand how the farmer is using the words can to meaning. Ambiguity can arise out of the careless use of pronoun, as the following writes illustrated. सही है पढ़ना है बॉक्स में. A carpenter was instructing his overworked and underpaid helper. I told the nail in place. When I nod my head, it hit is hard with the arms. What did the helper hit? The suggestion is that the disgruntled helper hit the carpenter hard on the head instead of the nail because he asked him to. चलिए इसको अभी हम समझेंगे अच्छे से. हमारी जो रीडिंग हुई है यहाँ तक मनीषा जी ने जो रीड किया है, हम स्टार्टिंग से आते हैं. बैरियर्स के बारे में बात करी मनीषा जी ने. जो सबसे पहला जो पढ़ा कि हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं किसी पर्सन से, तो समटाइम्स वी कैन कंप्लीटली हम उसको समझा पाते हैं, अपनी मैसेज को सामने वाले पर्सन तक पहुंचा पाते हैं, बट समटाइम ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती. तो जो जब हम कम्युनिकेशन अपनी सक्सेसफुल नहीं कर पाते, तो रीजन क्या है जब हम अपनी बात को सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते? मे बी डिफरेंस बिटवीन द इंटेंडेड द मैसेज. तो इसका मतलब यह हो सकता है जो हम मैसेज देना चाहते थे या चाह रहे हैं, वो मैसेज सामने वाले पर्सन तक क्यों नहीं पहुंच पाया. व्हाट इज इसी को हम इसको समझेंगे. व्हाट इज अंडरस्टूड, जो हमने भेजा था और वो जो सामने वाले पर्सन ने समझा. जैसे भी किसी ने क्वेश्चन किया था मेरे से कि
एनकोडर और डिकोडर में डिफरेंस या उसका प्रोसेस वगैरह। तो हम स्टार्टिंग यूनिट 1 में हमने जैसे पढ़ा था कि एक प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशंस को प्रोसेस होता है। प्रोसेस में क्या होता है, एक पर्सन सबसे पहले वाला तो जो इनकोडर होता है, एड्रेसर होता है, वो अपने एक मैसेज को, टेक्स्ट को किसी भी फॉर्मेट में, चाहे ओरल, चाहे वर्बल, चाहे रिटर्न, चाहे बॉडी जेस्चर से कुछ सामने वाले पर्सन को बताने की कोशिश करता है। अब सामने वाला पर्सन जो है उसको कैसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हाथ से लाके किसी को बुला रहा हूँ या किसी को बाय कर रहा हूँ, तो ये मैंने एक कम्युनिकेट करने की कोशिश करी। अब सामने वाला पर्सन मेरे इशारों से क्या समझता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी वो पर्सन क्या हो गया, डिकोडर हो गया, वो जो मेरे मैसेज को रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, अपनी नॉलेज के बिहाफ पे उसको समझेगा और इंटरप्रेट करेगा और देन वो भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तरीके हो गए कि एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो गया। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि हमारे को बीच में कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। तो जो कम्युनिकेटर है और जो रिसीवर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक कम्युनिकेटर है यहाँ पर और सेकंड पर्सन क्या है, एक रिसीवर है। ये रिसीवर है और यहाँ पे कम्युनिकेटर है, बट इनके बीच में क्या है, बैरियर्स हैं। तो वो कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं, सामने वाला कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इससे, कहाँ कम्युनिकेटर से मिस्टेक हो सकती है, वो सब चीजें हम इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने बैरियर्स कुछ पहले भी कवर किए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ और डिटेल में इसको हम कवर करेंगे। द रीजन फॉर द बैरियर्स टू कम्युनिकेट एज सेवरल में भी क्लासिफाइड किया गया, थ्री कैटेगरी में किया गया है। जैसे कि सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं, जिसको हम लैंग्वेज या स्पोकन या ओरल वर्ड से जो हमारी गलतियां होती हैं या जो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसको बोलते हैं। सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं, डिफरेंट सोसाइटी में कुछ साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं, उससे भी हमारा चांसेस होते हैं कि हमारा मैसेज डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टॉर्टेड हो जाए, या फिर हमारा मैसेज 100% समझ में ना आए। क्रॉस कल्चर बैरियर्स में क्या होता है, क्रॉस कल्चर बैरियर्स में नॉर्मली एक कल्चर का पर्सन अगर दूसरे पर्सन कल्चर के कम्युनिकेशन से करता है तो वो डिफरेंट माना जाता है, ठीक है। तो वहां पे ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है वहां पर कि उसकी मैसेज को मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया जाए, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रॉस कल्चर की बात करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं जैसे वुमेन्स जब व्हाइट पहनती हैं, कुछ जैसे इंडिया में नॉर्मली विडो पहनती है, और विडो ये एक कम्युनिकेट करना चाह रही है कि आई लॉस्ट माई हस्बैंड, नॉर्मली अगर बात करते हैं तो ये मैंने एक मूवी से उठाया है ये। लेकिन किसी दूसरे कल्चर में जब कोई व्हाइट गाउन या कुछ इस तरह के ड्रेस पहनते हैं, इट मीन्स उनका वो मैरिज वाला डे है। तो एक जो ड्रेस, जैसे हमने पढ़ा था यूनिट 1 में कि हम कम्युनिकेट कितने तरीकों से करते हैं, उसमें एक अपीयरेंस से भी था, एक पर्सनालिटी यानी अपीयरेंस से भी हम अपने कम्युनिकेट करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील जो अपनी यूनिफॉर्म से एक्सप्रेस करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जब व्हाइट वुमेन्स जब कभी कोई व्हाइट पहनती है तो उसका मतलब ही हैज लॉस्ट हिज हस्बैंड। बट कहीं और दूसरे कंट्रीज में जब वो मैरिज वाले फंक्शन वाले दिन वो पूरा व्हाइट गाउन पहनते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये क्रॉस कल्चर बैरियर्स हो गए। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सम एस्पेक्ट ऑफ क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशंस इन दिस यूनिट, प्रीवियस वन। वी हैव सीन द बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन कल्चर में अराइज फ्रॉम वेरिएशंस अमंग कल्चर इन द मीनिंग अटैच। तो अलग अलग कम्युनिकेशन में उनकी मीनिंग्स अलग अलग अटैच होती है, उनके जेस्चर्स वगैरह, उनके सिंबल्स वगैरह भी होते हैं कुछ, या बॉडी लैंग्वेज भी होती है उनके, ठीक है। तो वो डिफरेंट होती है। वी शैल नाउ स्पीक अबाउट द फर्स्ट टू कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर्स के बारे में। जैसे अभी यहाँ पे मनीषा जी ने पढ़ा, लैंग्वेज इज नॉट प्रिसाइज टूल फॉर थॉट। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट कंप्लीट नहीं है। इट नीड टू बी हैंडल्ड डीपली एंड एक्यूरेटली एंड केयरफुली। इसके लिए हमें बहुत सावधानी से इसको एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होनी पड़ेगी, और हम और ज्यादा इसको एक्सप्रेस कर सकें इसलिए हैंडल्ड करना पड़ेगा डेफ्टली एंड एक्यूरेटली एंड केयरफुली, ठीक है। इसको एक्यूरेटली और केयरफुली एक्सप्रेस करेंगे तब जाकर के ये थोड़ा सा और अच्छे से हमें कर पाएगा। वी शैल रिटर्न दिस पॉइंट इन लेटर ब्लॉक। इन्होंने कहा है कि हम सिमेंटिक बैरियर के जिस पॉइंट को हम लेटर ब्लॉक के अंदर, यानी कि आगे जैसे भी ब्लॉक 1 पढ़ रहे हैं हम, ब्लॉक 1 के अंदर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 हम कर रहे हैं, जब हम आगे नेक्स्ट ब्लॉक करेंगे तो वहां पे इस चीजों को और थोड़ा प्रिसाइजली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब बात करते हैं एम्बिग्यूटी इन एक्सप्रेशंस। एम्बिग्यूटी क्या होता है, किसी कभी कभी हम एक ही लैंग्वेज में कई सारे वर्ड्स यूज करते हैं, कई सारे फ्रेज यूज करते हैं, ठीक है। एवरी लैंग्वेज हैज वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग। होता है ऐसा? कोई एग्जांपल आप में से दे सकते हैं ऐसा कोई एग्जांपल जो सेम साउंड करता हो बट मीनिंग डिफरेंट हो? फॉर एग्जांपल सन की बात करें। सर नो। हाँ, नो। जैसे अगर नॉर्मली नो बोले तो KNOW सर नो, एंड NO नो। सन की नो। बात करें, ठीक है। या फिर और भी बहुत सारे, टू की बात कर सकते हैं, टू, TWW टू, है ना, इस तरीके से। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो सेम है, लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट से हम उसको ज्यादा अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी काफी सारे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। साउंड लुक वेरी
similar but are very different in meaning. तो sound क्या होता है, sound look very similar, हमें एक जैसे लगते हैं but different in meaning. Ambiguity can arise because of, इससे ambiguity arise हो सकती है और misunderstanding हो सकती है और communications के लिए barrier, और वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा. The such words or expression, sometimes हम expression देते हैं अलग different, whether intentionally या फिर unintentionally, ठीक है. कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कपिल शर्मा के शो में या कहीं दूसरे शो में, डबल मीनिंग वर्ड से या फिर और से पजल से वर्ड प्ले करने की कोशिश करते हैं और वो एक जोक क्रैक करने की कोशिश करते हैं, या जितने भी आपने स्टैंड अप कॉमेडियन को देखा होगा इस तरीके से वो इन चीजों के साथ खेलते हैं. एंड इंटेंशनल हो उसको हम बोलते हैं इंटेंशनली करना, ठीक है, ऐसा कुछ करना. लेकिन जहाँ पे अनइंटेंशनल हो जाता है तो वहाँ पे मैसेज डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. मैसेज डिस्टॉर्टेड का मतलब है जो आप कहना चाहते हो वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा, जो भी मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हो वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. कॉमनली नोन एज पुन, इसको ऐसा पुन बोला जाता है, ठीक है. लुक्स एट दिस एग्जांपल, दे कैन फिश हेयर. दे कैन फिश हेयर से नॉर्मल एक सिंपल फ्रेज है, ये सेंटेंस है, इसमें यहाँ पे परमिशन मिल रही है, यानी कि वो यहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं. दे कैन फिश हेयर, फॉर एग्जांपल अगर श्रीलंकन की कुछ फिशर्स आए हैं तो हम बोल सकते हैं यस दे कैन फिश हेयर. अदरवाइज क्या कर सकते हैं इसको, दे पुट फिश इनटू केन्स हेयर, है ना. तो इस तरह की दो मीनिंग निकल के आ रही है. दे कैन पुट फिश इनटू केन्स हेयर फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है. द वर्ड कैन इन द मॉडल एक्सोलरी, यहाँ पे देखो दो है, एक तो मेन वर्ब है, आपको पता होगा कैन वर्ब है हमारा, रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द नाउन. एंड कैन, देयर इज वेल नोन जोक अबाउट द फार्मर्स. इस तरीके से जोक्स भी यहाँ पे क्रैक बताया गया है कि हार्वेस्ट फॉर टोमेटोज, ठीक है, टोमेटोज हार्वेस्ट कर सकते हैं. वी ईट और सेल व्हाट वी कैन, हम यहाँ पे ईट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं व्हाट वी कैन. एंड व्हाट वी कांट वी कैन, और जो हम नहीं कर सकते वो भी हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे कैन के अलग अलग मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है. By now you can easily understand how the farmers is using the word can in two meaning. अब यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से स्टडी करोगे तो वी कैन, वी ईट और सेल, दैट वी कैन यहाँ पे अलग डिफरेंट मीनिंग है. और यहाँ पे व्हाट वी कांट वी कैन, तो दोनों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है. एम्बिगिटी कैन अराइज आउट ऑफ केयरलेस यूज ऑफ प्रोनाउंस. तो एम्बिगिटी कैसे अराइज होती है, केयरलेस यूज ऑफ प्रोनाउंस, अगर हम प्रोनाउंस उसको नहीं सही से करेंगे तो यहाँ पे उसकी मीनिंग यहाँ पे हो सकती है, यानी एम्बिगिटी अराइज हो सकती है. तो एम्बिगिटी क्या है आपका, कि आप सामने वाले पर्सन के सामने कोई वर्ड बोल रहे हो बट उसकी मीनिंग, एक ऐसा वर्ड जिसकी मीनिंग डिफरेंट हो सकती है, साउंड एक जैसा है बट मीनिंग डिफरेंट हो सकती है. एक कारपेंटर का एक और एग्जांपल इन्होंने लिया है. कारपेंटर वाज इंस्ट्रक्टिंग हिज ओवरवर्क एंड अंडरपेड हेल्पर. क्या हुआ इसका मतलब, एक कारपेंटर का जो हेल्पर होता है ना, ओवरवर्क होता है जिसने बहुत सारा काम किया हो, अंडरपेड होता है जिसने कम पैसे लिए हों, अंडरपेड बोलते हैं उसको. आई विल होल्ड द नेल इन प्लेस, क्या कहता है, मैं होल्ड, नेल किसको बोलते हैं, नेल शायद उसको बोलते हैं कील वगैरह को. व्हेन आई Yes, sir. नोड माय हैंड, हाँ जी, जी. तो अब ये कहता है कि मैं अपने सर, नोड नोड माय हेड का मतलब होता है सर को हिलाऊंगा. हिट इट हार्ड विद द हैमर. अब बताइए इसका क्या मतलब हुआ. जी, इन्होंने कहा कि मैं, आई विल होल्ड द नेल इन प्लेस, मैं यहाँ पे कील को लगाऊंगा और जैसे ही मैं सर को हिलाऊं तो जोर से मारना, ठीक है. सर इसका मतलब ये है कि उसने बोला था कि आई विल होल्ड द नेल इन प्लेस, तो जो वो उसका जो वर्कर है उसको लगा कि वो अपने नेल्स की बात कर रहे हैं, और जब मैं अपना सिर हिलाऊंगा तो जो हैमर है उसको हार्ड तो उसमें हिट कर देना उसके नेल पे, तो उसने सर उसके नेल पे हिट किया होगा. यस यस, तो ये क्वेश्चन भी यही है. द सजेशन इज दैट दिस ग्रिंटेड द हेल्पर हिट द कारपेंटर हार्ड ऑन द हेड. हेड पे, ऑन द हेड, सर पे मारा भैया उन्होंने, हेड, सर ओके सर. हेड इंस्टेड ऑफ द नेल बिकॉज ही आस्क्ड हिम टू, क्योंकि उसने कहा था ऐसा. लिखा ना कि आई विल होल्ड द नेल इन प्लेस व्हेन आई नोड माय हेड, जब मैं अपने सिर हिलाऊं, सर को हिलाऊं तो जोर से मारना. हिट इट हार्ड विद द हैमर, और उस हैमर से, हथौड़े से जोर से मारना. तो ठीक है, तो उन्होंने मार दिया, ठीक है जी. अब हम बात करते हैं होमोफोन्स के बारे में. इसको कौन रीड करेंगे स्टूडेंट्स. यस प्रियांशी, यू कैन रीड. यस सर. जी. Homophones. Words that are pronounced similarly but have different meanings are called homophones. Here are some examples. See, see, sight, 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 I, wait, wait, check, check, weak, weak,
lose and lose. A proficient listener can easily make out the meaning from the context, but a not so proficient or inattentive listener may have problems when she listens or he listens to sentences like these. It's a naughty problem. It's a naughty problem. Scroll. Therefore, one should be careful in using such words, keeping the listener in view. Yes, explain this, Priyanshi ji. Okay, sir. Homophones वो होते हैं words that are pronounced similarly, जो words होते हैं वो pronounce तो similar, मतलब उनको हम बोलते एक जैसा है, but जो उनके meaning होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं. ये कुछ examples है नीचे. C और C, SEA का मतलब है समुद्र हमारा, और SEE का मतलब है देखना. CITE का मतलब है साइट, और SITE मतलब साइट जो हम देखते हैं, जो हम व्यू देखते हैं, साइट वो साइट है. और SIGST साइट आई थिंक वो आई से रिलेटेड साइट है हमारा. वेट, WAIT वेट मतलब होता है रुकना. WEIGST वेट का मतलब होता है जो हमारा वजन वगैरह होता है. CHEC का मतलब होता है चेक का, मतलब कि हमें किसी चीज को चेक करना है. और CEQUE का मतलब होता है जो हमारी बैंक की चेकबुक होती है उससे. VEA का मतलब होता है वीक मतलब कमजोर, और WEEK का मतलब होता है जो हमारा हफ्ता होता है. और ऐसी LOOSE का मतलब होता है लूज, जो ढीला होता है. LOSE का मतलब होता है अगर हम किसी चीज में हार गए या हमने कुछ खो दिया. A proficient listener can easily make out the meaning from the context, but a not proficient or inattentive listener may have problem. जो एक proficient listener होगा, जो बहुत ध्यान से और attentive होके जो सुनता है, वो आराम से पता लगा सकता है कि किस वर्ड का कौन सा मीनिंग है. लेकिन जो प्रोफिशिएंट नहीं होता, जो इनअटेंटिव होता है, जो ढंग से नहीं सुनता, उसको प्रॉब्लम हो सकती है. ये सब वर्ड्स को सुनने में. जैसे नीचे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, इट्स अ नॉटी प्रॉब्लम और इट्स अ नॉटी प्रॉब्लम. ऊपर वाले का मीनिंग है कि इट्स अ नॉटी प्रॉब्लम. आई थिंक नॉटी का मतलब यहाँ पर है कि बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, फंसी हुई प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कठिन प्रॉब्लम है. और नीचे का मतलब है इट्स अ नॉटी प्रॉब्लम. नॉटी का मतलब होता है जो चंचल होता है, चंचलपन होता है. तो इट्स अ नॉटी प्रॉब्लम कुछ वैसी प्रॉब्लम है जो हंसी मजाक में हम सॉल्व कर सकते हैं. तो दोनों का बहुत अलग अलग मीन है, लेकिन जो उनके प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है. जी, तो आगे रीड करेंगे. ठीक है, नोटिंग निटिंग होती है ना, निटिंग किसे बोलते हैं, वो जो बुनते हैं, और ये स्लैंग की तरह यूज होता है नोटिंग यहाँ पर. इसको हम बोलते हैं निटिंग, जैसे होता है बुनने को, यहाँ पे नोटिंग होता सर है निडल्स जो उसकी होती है. हाँ, बहुत जब कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है तो उसको बोलते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड के लिए यूज होता है यस. यहाँ पे. ठीक है, कॉन्टेक्सुअल मीनिंग एंड स्पीच एक्ट ये रीड करेंगे प्रियांशी जी, देन एक्सप्लेन करेंगे आप. Yes, sir. Language as used in communication has the property that much of the meaning is derived from the intention and the context of an utterance. Language is used to perform a speech act, such as giving an order, extending an invitation, and so on. Thus, the sentence, Ram, the door is open, can be interpreted in at least 5 ways depending on the context. As an invitation, Ram, come in. As a command, Ram, close the door. As a warning, Ram, be careful. As a statement of intent, Ram, we are open for discussions. As a dismissible, Ram, you can leave. Language is used in communication has the property that much of the meaning is derived from the intention. Language एक ऐसी communication है, उसके अंदर एक ऐसी property है कि हम उससे उसकी इंटेंशन से या उसका जो कॉन्टेक्स्ट हम जिस वे में बोल रहे हैं उससे हम डिराइव कर सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या है. लैंग्वेज इज यूज टू परफॉर्म अ स्पीच एक्ट. जो लैंग्वेज है हम उसको क्यों यूज करते हैं, जो हमारा स्पीच एक्ट है, जो हम बोलते हैं, जो हम स्पीच देते हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए, या ऑर्डर्स को देने के लिए, गिविंग ऑर्डर या इनविटेशन को एक्सटेंड करने के लिए, और बाकी सब चीजों के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं. जैसे कि दस द सेंटेंस राम द डोर इज ओपन. जैसे ये सेंटेंस है कि राम द डोर इज ओपन, इसको हम एटलीस्ट 5 वेज में, मतलब 5 तरीकों से हम इसको समझ सकते हैं. जैसे एज एन इनविटेशन, अगर हम उसको इनविटेशन मतलब जैसे अगर हम उसे बुला रहे हैं, जैसे राम कम इन, हम उसको बुला रहे हैं कि राम तुम अंदर आ जाओ. एज अ कमांड, अगर हम उसे कुछ कमांड दे रहे हैं कि राम क्लोज द डोर, कि तुम दरवाजे को बंद कर दो. थर्ड है
एज अ वार्निंग, मतलब वार्निंग दे रहे हैं हम उसको कि राम बी केयरफुल, तुम जरा संभल के रहो। एज अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, अगर हम एक इंटेंट मतलब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि राम वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, मतलब तुम्हें अंदर नहीं आना है, हम कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं। लास्ट है एज अ डिसमिसेबल, राम यू कैन लीव, मतलब हम डिसमस कर रहे हैं उसको, मतलब जाने के लिए कह रहे हैं कि अब तुम जा सकते हो। तो हमने इस सेंटेंस को कि राम द डोर इज ओपन को 5 तरीकों से वो किया है, समझा है। जी, बस मेरे को एक यहाँ पे था, राम वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, इट मीन्स होगा कि वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, ठीक है। वी आर, मुझे लगा कि यहाँ पर हम जैसे हम किसी को कहते हैं ना ओपन द डोर, राम द डोर इज ओपन। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को वेलकम कर रहा हूँ या किसी को डिस्कशन के लिए, जैसे प्रियांशु जी को बोल रहा हूँ कि वी आर द डोर इज ओपन, मीन्स डिस्कशन जो भी करना है हम वी आर ओपन फॉर द डिस्कशन, या ओके, दो पार्ट। मतलब हम तैयार हैं। यस यस, ओके ओके, सर। मुझे ऐसा लगा, ठीक है। तो ओके सर। जी, अब इसके बाद नेक्स्ट पैरा हम रीड करने के लिए बुलाते हैं, एक्सक्लेमेशन। स्ट्रेस एंड इनोटेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं, तो इसको कोई रीड करेंगे आप में से स्टूडेंट्स? जी, पलक जी। Stress on a particular slave in a word or on a word in a sentence can change the meaning drastically in sentences. They stole the fruit from the garden. 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 The effective use of intonation, the tune in which something is said, can convey a meaning that is not actually said. If you hear the words, he is quite good, with a rising tone on good, commonly called comma intonation, you get the impression that the speaker has left something unsaid. He is quite good, but what is left unsaid is usually taken to be a negative comment. जी, तो यहाँ पे आपने देखा कि स्ट्रेस जो है हम अगर किसी पे देते हैं किसी एक सेंटेंस पर, तो उससे भी मीनिंग हमारी डिफरेंट मीनिंग हो सकती है। अभी एक ही सेंटेंस है यहाँ पे, एक स्ट्रेस से हमारे मीनिंग चेंज हो सकती है, या सामने वाले तक पर्सन तक हम जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो एक यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, दे स्टोल द फ्रूट्स फ्रॉम द गार्डन। अब ये एक सेंटेंस है नॉर्मली, अगर मैं इसको अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेस, जैसे इनमें वर्ड में लिखा है 4 में, वहां पे करके बताता हूँ आपको। दे स्टोल द फ्रूट्स फ्रॉम द गार्डन, यहाँ पे स्टोल है, दे स्टोल, उन्होंने चुराया है, ठीक है। दे स्टोल द फ्रूट्स फ्रॉम द गार्डन, तो उन्होंने फ्रूट्स को चुराया है, यहाँ पे मैं फ्रूट्स पे किया है, ठीक है। दे स्टोल फ्रूट्स फ्रॉम द गार्डन, तो उन्होंने गार्डन से फ्रूट्स को चुराया है। दे स्टोल द फ्रूट्स फ्रॉम द गार्डन, तो ये उन्होंने चुराया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग अलग, अगर हम किस पे स्ट्रेस दे रहे हैं तो उससे हमें पता चल रहा है, दे स्टोल, उन्होंने लिया नहीं है, उन्होंने ऐसे उठाया नहीं, उन्होंने चुराया है, ठीक है। दे स्टोल फ्रूट्स, उन्होंने फ्रूट्स चुराए हैं, ठीक है। दे स्टोल फ्रूट्स फ्रॉम गार्डन, गार्डन से चुराए हैं उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चारों की मीनिंग, जब हम स्ट्रेस देते हैं तो किसी से उनके अलग है। दे स्टोल, अगर हम हो सकता है कि हमने नहीं, उन्होंने, दे स्टोल द फ्रूट्स फ्रॉम द गार्डन। इस तरीके से इन्होंने चारों को स्ट्रेस देके अलग अलग मीनिंग यहाँ से निकल सकती है, ठीक है। वर्ड शिफ्ट ये है, आगे हम वर्ड को शिफ्ट करना, ये हम कल करेंगे, क्लास में कवर करेंगे, कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, सी यू ऑल टुमारो, कल की क्लास में हम सब मिलते हैं।